کامیابیوں کے سفر میں نیا سنگ میل، پی ایس ایل نے نئی بلندیوں کو چھو لیا۔ جگمگاتے ایونٹ میں 2 نئی ٹیموں کی انٹری، تعداد 8 ہو گئی ہے۔ حیدرآباد اور سیالکوٹ کی بھی پی ایس ایل فیملی میں شمولیت۔ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں نیلامی کی تقریب ہوئی۔ ایف کے ایس نے 175 کروڑ میں 7ویں فرنچائز کے لیے حیدرآباد کو انٹری دلائی۔ اوزی ڈیویلپر نے 185 کروڑ میں 8ویں ٹیم کے لیے سیالکوٹ کو پی ایس ایل کا حصہ بنایا۔ نئی امنگ، نئی ترنگ، نئے جلوے، پی ایس ایل فیملی میں 2 نئی ٹیمیں شامل، حیدرآباد اور سیالکوٹ کی انٹری۔ حیدرآباد کرکٹ کے بازار میں بڑے بڑے خریدار، جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں رنگ برنگی تقریب، نئی ٹیموں کے لیے 9 کمپنیز میں مقابلہ۔ پہلے راؤنڈ میں 7ویں ٹیم کی نیلامی، 110 کروڑ روپے سے شروعات، شام ڈھلتی گئی، دام بڑھتے گئے۔ ایف کے ایس نے 175 کروڑ کی بولی لگا کر ٹیم خرید دی۔ دوسرے راؤنڈ میں 8ویں ٹیم کی بولی 170 کروڑ روپے سے شروع ہوئی۔ او زی ڈیویلپرز نے 185 کروڑ کی بولی لگا کر پی ایس ایل کی ممبرشپ حاصل کر لی۔ ٹیم مالکان نے پی ایس ایل فیملی کا حصہ بننے پر خوب جشن منایا۔ نئی ٹیموں کی نیلامی، پورے پاکستان کی جیت، پی ایس ایل کے لیے یادگار ترین دن۔ صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بھی خوش۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے نیلامی کو پاکستان میں سرمایہ کاری پر اعتماد کا ثبوت قرار دیا۔ بڈنگ سے پی سی بی کو 36 ارب روپے کی آمدنی ہوگی۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا پی سی بی اور پی ایس ایل انتظامیہ کو خراج تحسین۔ امریکہ اور آسٹریلیا سے آنے والے سرمایہ کاروں کو ٹیمیں خریدنے پر مبارکباد دی۔ بولی سرمایہ کاری سے پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں خارجی ہاتھ ملوث ہیں۔ دہشت گردی کے پیچھے فتنہ الہندوستان ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا کوئٹہ میں قومی شاہراہ N25 کے سنگی بنیاد کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کا امن تباہ کرنے والوں کو مئی میں سب سے بڑا جواب دیا۔ بھارت کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں زناٹے دار تھپڑ مارا۔ بھارت معرکہ حق میں بدترین شکست کبھی نہیں بھولے گا۔ ہمارے شہداء کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ پاکستان میں جو دہشت گردی اور کے پی میں جو دہشت گردی نے سر اٹھایا، اس دہشت گردی میں جو ہاتھ کار فرما ہیں وہ خارجی ہاتھ جو ہمسایہ ممالک کی طرف سے ہیں، جو اس دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے نہ صرف ٹریننگ مہیا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں۔ ان کے ناپاک عزائم جو پاکستان کے خلاف ہیں، اس کا سب سے بڑا جواب ان کو 6 مئی اور 10 مئی پچھلے سال ملا، جب ہندوستان کی فوج کو ہماری پاکستان کی بہادر فوج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ ان کی لیڈرشپ میں وہ زناٹے دار تھپڑ مارا کہ عمر بھر وہ یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ دہشت گردی بلوچستان اور کے پی سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور ختم ہوگی۔ M25 جس کو اب پاکستان ایکسپریس وے کا نام دیا گیا، آج اس منصوبے کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا۔ جناب علیم خان صاحب اور سیکرٹری کمیونیکیشن اور چیئرمین NHA، ان کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ 2 سال میں نہیں، اس کو 1 سال میں مکمل کریں۔ آج ہم نے 5 دانی اسکولوں کا یہاں پر سنگ بنیاد رکھا ہے۔ 2 اسکول فلفور ہم چاغی اور واشو میں ہم انشاءاللہ وہاں پر بھی اس کا آغاز کریں گے۔ 40 روپے فلفور چاہیے کچی کنال کے لیے۔ کچی کنال کے اوپر ہم اگلے 4 ہفتوں میں ٹھوس فیصلہ کر کے بلوچستان کے عوام کو ان کو یہ تحفہ دیں گے۔ کراچی تا چمن 810 کلومیٹر طویل سڑک دسمبر 2027 سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف۔ یہ شاہراہ کراچی کو چمن کے ذریعے افغانستان اور وسطی ایشیا سے جوڑے گی۔ منصوبے پر 400 ارب روپے لاگت آئے گی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے منصوبے کو بلوچستان کے عوام کے لیے گیم چینجر قرار دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا بلوچستان کے دور دراز علاقوں کو قومی نیٹ ورک سے جوڑنا وفاق کی پالیسی ہے۔ اسی ویژن کے تحت بلوچستان ترقی کر سکتا ہے۔ وفاقی حکومت کی پالیسی ہے کہ ملک بھر میں انٹر کنیکٹیوٹی کو بہتر بنایا جائے، بلوچستان کے دور دراز علاقوں کو قومی نیٹ ورک سے جوڑا جائے۔ بلوچستان کی ترقی اسی ویژن کے تحت ممکن ہو سکتی ہے۔ سب سے اہم اور لینڈ مارک منصوبہ پاکستان ایکسپریس وے ہے، جو کہ کراچی، کوئٹہ، چمن تک تقریباً 800 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ وفاقی حکومت نے اس کے لیے خصوصی فنڈ فراہم کیے ہیں اور اسے 2 سال کی قلیل مدت میں مکمل کرنے کی ہدایات دی۔ یہ محض ایک سڑک نہیں، اس ملک کی ترقی میں اور خاص طور پر بلوچستان کی ترقی کے لیے ایک سنگ میل
की हैसियत रखती है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वाज़ेह पैगाम भी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। ये मंसूबा पाकिस्तान की इक्तिसादी राहदारी CPEC की तकमील में भी अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि ये बलूचिस्तान के जरिए हमारी जनूबी बंदरगाहों को मगरबी चीन और वस्ती एशिया से जोड़ेगा। बलूचिस्तान के अवाम के लिए ये एक्सप्रेस वे हकीकी मानों में एक गेम चेंजर है। बलूचिस्तान में 735 अरब रुपए के मंसूबों पर इस वक्त काम कर रहा है। पाकिस्तान की सलामती पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और दाखिली इस्तेहकाम के लिए पुरज़म है। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम कहा, पाक फ़ौज कौमी खिदमत की अक़दार को मज़ीद तक़वियत दे रही है। लाहौर गैरजन के दौरे में आर्मी चीफ ने पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारी, आला तरबियती मयार और जंगी इस्तेदाद में इजाफे से मुताल्लिक़ इक़दामात का जायज़ा लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क की सलामती को कोई भी खतरा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने लाहौर गैरिजन में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी इस्तेदाद में इजाफे के लिए इकदामात का जायजा लिया। सिपह सालार को ऑपरेशनों पर तफसीली ब्रीफिंग, मुस्तकबिल के जंगी माहौल और तकनीकी जरूरियात के मुताबिक इस्लाहात और मंसूबों पर रोशनी डाली गई। फील्ड मार्शल ने एक खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का मुआयना भी किया, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी का अमली इस्तेमाल दिखाया गया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने अफसरान से खिताब में कौमी सलामती को किसी भी खतरे के खिलाफ पाक फौज की जीरो टॉलरेंस की वाज़ेह पॉलिसी पर जोर दिया। सिपह सालार ने कहा, मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान आर्मी जदीद तकाज़ों से हम आहंग रहते हुए नज़्म, पेशा वराना महारत और कौमी खिदमत की अक़दार को मज़ीद तक़वियत दे रही है। तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने फौजी दस्तों के लिए कायम खेलों और तफरीही सहूलियात का भी जायजा लिया। अहलकारों की जिस्मानी फिटनेस, हौसले और मजमूई फलाह के लिए स्पोर्ट्स और तफरीह को अहम करार दिया। फील्ड मार्शल का CMH लाहौर में कायम जदीद हाई केयर सेंटर का भी दौरा, जदीद तिबी मरकज के क़याम में इंतजामिया और अमले की काविशों को सराहा। कराची में चोरी की बड़ी वारदात, घरेलू मुलाजमाए 4.5 करोड़ से जायद मालियत के जेवरात लूट कर फरार, अलमारी के ताले तोड़कर जेवरात चोरी किए गए। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके चोर खवातीन की तलाश शुरू कर दी गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में रवा साल चोरी की पहली बड़ी वारदात, घरेलू मुलाजमाओं ने 4.5 करोड़ के जेवरात चोरी किए। चोरी का ये वाकया मोहम्मद अली सोसाइटी में पेश आया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CCTV फुटेज की मदद से तलाश जारी है। कराची के इलाके सुराब गोट में दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात, नामालूम अफराद ने घर में घुसकर पसंद की शादी करने वाले जोड़े की जान ले ली। पुलिस का कहना है कि मियाँ बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। दोनों ने 8 महीने पहले ही शादी की थी। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद कमाल। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। लासी गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग, मियाँ बीवी जाँ बहक। मकतूलीन की शनाख्त लतीफ़ा और नसरुल्लाह के नाम से हुई, जो लाड़काना के रिहायशी थे। दोनों ने 8 माह पहले पसंद की शादी की। गुज़िश्ता चंद माह से लासी गोट में किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे। मकान मालिक का कहना है 4 मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर अंधाधुन गोलियां चलाई। जिसने शादी की है उसी को मारा, उन्होंने चुन चुन के मारा है। लड़की को, उसके जो शोहर है उसको मारा है। रेस्क्यू एहलकार के मुताबिक मकतूलीन के जिस्म पर छुरियों के निशानात भी थे। जाए वकुआ से गोलियों के खौल और 3 छुरियां भी मिली हैं। एक छुरी पर खून भी लगा हुआ है। पुलिस का कहना है दोनों अफराद को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। IG सिंध ने DIG ईस्ट को वाक़े की शफाफ तहकीकात करने और मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी है। कैमरामैन फैसल आगाई और इम्तियाज अली के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। आपको बताएं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ला काफ़ी शिद्दत रिकॉर्ड की गई है। 5.8 इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ला शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई है। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर आ गए। आपको आगाह करें, अभी कुछ ही देर पहले ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवा में ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई है। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर आ गए। अभी कुछ ही देर पहले ज़लज़ला आया है इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवा में, जिसकी शिद्दत अभी 5.8 रिकॉर्ड की गई है और बताई जा रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ला महसूस किया गया है, जिसकी शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और आज़ाद और मकबूजा कश्मीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं।
अपने नाज़रीन को बताएं कि लोग कलमा तैयबा का विरद करते घरों से बाहर आ गए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। 5.8 शिद्दत का ये ज़लज़ला था जो रेक्टर स्केल पर रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विरद करते घरों से बाहर आ गए, जबकि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ला शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई है। अभी कुछ ही देर पहले ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अगर शिद्दत की बात की जाए तो 5.8 रिकॉर्ड की गई है और आज़ाद और मकबूजा कश्मीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विरद करते घरों से बाहर आ गए। ऐसे में आपको SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए। घरों से बाहर आ जाएं, खुले मैदान में चले जाएं जहां पर आप सेफ फील कर सकें। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ला शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई है। लोग कलमा तैयबा का विरद करते घरों से बाहर आ गए और कुछ ही देर पहले ये ज़लज़ला महसूस किया गया है। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अगर शिद्दत की बात की जाए तो 5.8 रिकॉर्ड किया गया है। आज़ाद और मकबूजा कश्मीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विरद करते घरों से बाहर आ गए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ला शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, गिलगित, स्कर्दू और एबटाबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान का शिमाली इलाका था। गहराई 159 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अभी कुछ ही देर पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और 5.8 शिद्दत का ये ज़लज़ला था जो रेक्टर स्केल पर रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विरद करते अपने घरों से बाहर आ गए। गिलगित, स्कर्दू और एबटाबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आज़ाद और मकबूजा कश्मीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान का शिमाली इलाका था। गहराई 159 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। अभी कुछ ही देर पहले ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और इसकी शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई है। अगर बात करें तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसी पर बात करते हैं उमर बिन आसिफ से। जी उमर, बताइएगा कि 5.8 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया है, मज़ीद क्या डिटेल सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक इस्लामाबाद, गिलगित स्कर्दू में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की जो शिद्दत है रेक्टर स्केल पे 5.8 रिकॉर्ड की गई है। जो ज़लज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से तफसीलात शेयर की गई हैं, इसके मुताबिक ज़लज़ले की गहराई जो है वो 159 किलोमीटर से जो ज़लज़ले का मरकज़ बताया जा रहा है ताजिकिस्तान और जिंगजियांग बॉर्डर था। ज़लज़ले के झटके जो है इसके अलावा रावलपिंडी, गुजरखान, टेक्सला के इलाकों में भी महसूस किए गए हैं। अब तक ज़लज़ले के बायस किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर बिन आसिफ। अपने नाज़रीन को बताते चले कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक कोई जानी और माली नुकसान का पता नहीं लग सका। लाहौर से खबर है, कोट लखपत में जायदाद के जनाजा पर भतीजे ने चचा को कत्ल कर दिया। मुलजिम तलत ने फायरिंग करके अपने चचा को कत्ल किया। पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आया है। मकतूल की शनाख्त 53 साल के मोहम्मद सलीम के नाम से हुई है। वारदात के बाद मुलजिम फ़रार हो गया। तलाश अभी जारी है। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं उमर याकूब से। जी उमर, आगाह करें। जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका है कोट लखपत, जहाँ पर भतीजे ने अपने चचा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। मुलजिम की शनाख्त तलत के नाम से हुई है और जो मकतूल है उनकी शनाख्त मोहम्मद असलम के नाम से हुई है। उनकी उम्र 53 साल है। पुलिस के मुताबिक दोनों में विरासती जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। कोई 10 से 12 मरले का कोई प्लॉट था जिसकी विरासत का इनका आपस में तनाज़ा था, जिस पर भतीजे ने अपने चचा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया है, जबकि जो मुलजिम है वो मौके से फरार हो गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर याकूब इस तफसील का।